I'll start with the scope and foundation of the right of private defense before we start with the legislative enactment. Alright. So, as a rule, right of private defense has been stated by the Russell on crime on page number 491. He states that a man is justified in resisting by force anyone who manifestly intends and endeavors by violence or surprise to commit a known felony against either his person, habitation, or property. In these cases, he is not obliged to retreat and may not merely resist the attack where he stands, but may indeed pursue his adversary until the danger is ended. And if in a conflict between them he happens to kill his attacker, such killing is justified. Similarly, when the legislature thought to enact section 96 to 106 of the IPC and accepting from its penal provision certain classes of acts done in good faith for the purpose of repelling unlawful aggression, the legislature clearly intended to arouse and encourage the manly spirit of self-defense amongst the citizen when faced with grave danger. The law does not require a law-abiding citizen to behave like a coward when confronted with imminent unlawful aggression. As repeatedly observed by the Supreme Court, there is nothing more degrading to the human spirit than to run away in the face of danger. The right of private defense is thus designed to serve a social purpose, and it deserves to be fostered within the prescribed limits. There is a beautiful quote by Bentham, and he said, "It is the noble movement of the heart, that indignation which kindles at the sight of the feeble injured by the strong. It is the noble movement which makes us forget our danger as the first cry of distress. It concerns public safety that every honest man should consider himself as a natural protector of every other." So, you can imagine why this right is there. See, first of all, you must also know that the law is not omnipotent or omnipresent. See, when the crimes happens, you cannot expect a police officer to be there at every foot or at every centimeter of the country. Alright. So, many a times when crimes take place, you don't have time to have recourse to public authority. Then what does the law tell you? Does the law say that flee at the sight of danger? Or does the law says, no, hold your ground and fight back against them, defend yourself? So the law is actually, what it's doing, it is telling the citizens that if you exercise your right of private defense, and during the course of the exercise of such right, you happen to injure your attacker, or you happen to hurt him, or even in certain cases kill him, in certain cases killing the attacker, then in that situation you won't be held liable. Why? Because you are exercising your right of private defense. The law simply tells you that it doesn't expect you to act like a coward and flee at the slightest signs of danger. Now let us suppose there is a person named Mr. A. He's traveling with his girlfriend to, let us suppose, Greater Noida. During the course of his travel, he encounters some eve teasers who try to, let us suppose, molest his girlfriend. Alright. So in that situation, what do you expect A to do? Should A just run away and leave his girlfriend at the mercy of eve teasers? Or he should rather fight back? If at all the situation is such that he can fight back. In that situation, if the A has the capacity to fight and he does fight, then the law will say that you did good, and whatever you have done, whatever injuries you have caused on these eve teasers, that are condoned. Alright. So your acts of defending yourself, and during that conflict, if Mr. A were to cause injuries on these sorts of attacker, then in that scenario, the law will vindicate your acts and will continuously hold that you have acted in the right of private defense, and you won't be penalized for it. The law will not expect you to act like a coward. Here I am speaking in the context of Mr. A. So here the law expects Mr. A to actually fight back if he can fight back. The law will not say you should have telephoned the police officer and you should have waited. Then Mr. A will say, I should have waited for what?
The police station was 2 hours from there, and if I waited for that amount of time, they would have robbed me, they would have molested my girlfriend. Then what am I to do? Should I behave like a coward all the time? Is the law there to make me a coward? The answer is no. The law will simply say that you have to defend yourselves when you can defend yourself. All right. So the law will say that you don't have to act like a coward. You don't have to flee the spot. That is what Bentham is also saying. Bentham is one of the most renowned jurists. All right. So I think his words are the most perfect words which crystallize the right of private defense. I really like the words of Bentham when he says, it is a noble movement of the heart, the indignation which kindles at the sight of the feeble injured by the strong. It is the noble movement which makes us forget our danger at the very first cry of distress. It concerns public safety that every honest man should consider himself as the natural protector of every other. So now I just gave you some context that what this right of private defense is about. Now in England, you should know one thing. There are two types of homicide. There are two general headings. One is lawful homicide, where the acts are covered under general exceptions. And then there is unlawful homicide, which we call culpable homicide. So you know the punishment for culpable homicide, murder, etc., whatever. That is different. But what are lawful homicides? A homicide means when you kill some other person. So, lawful homicides are those homicides which are covered under general exceptions or some under special exceptions of any law. In India also, there are so many sections which cover lawful homicide. Right of private defense is one of them. So, if a person actually kills another man in right of private defense, it would be called lawful homicide. It won't be called unlawful homicide, which we call technically culpable homicide amounting to murder, or culpable homicide not amounting to murder. It won't be a culpable homicide at all. It would be a lawful homicide if an accused person is able to prove that he was acting under his right of private defense. However, it also has, the lawful homicide also has some headings in English law. There are certain sub-classifications in English law. I'll just tell you for the purpose of your knowledge. That is not relevant for the exam. These three classifications that I'm about to give you. So, in English law, if a person kills another person and the act is a justifiable homicide, then it can be of three types. Either it's a justifiable or excusable homicide, or it's a chance medley. Chance medley means that it happened during the course of fight. When two people were fighting viciously and one of them died, then English law calls it chance medley. And the third type of excusable homicide is when the homicide is committed in the right of self-defense. In that scenario, the English law treats it as excusable homicide and will not penalize you for it. Alright. Or in certain circumstances, the punishment will be severely reduced. Because in chance medley, there is some sort of punishment, but it is severely reduced. It is not akin to your culpable homicide or murder. Alright. We also recognize that in some cases, but that's beside the point. We'll deal with it as it comes. So, that was the point that I wanted to tell you about the English law. Now, how does Indian law treats us? Indian law has actually said that either your case falls within the heading of one of the most culpable homicide, one or more of culpable homicide, murder, or some other section, or either your act of homicide falls within the general exceptions. So, if your act falls within the general exceptions, you are excused. But if your act does not fall within the general exceptions, you are not excused. So, for the purpose of Indian law, the situation is very easy. Either your act is covered within the general exception, or your act is not covered within the general exception. So, depending on the scenario, you will be punished accordingly. So, either it is a culpable homicide, which may or may not amount to murder, or it is an excusable homicide. There is no further subheadings that has been created in English law. Alright, Indian law is fairly simple in that regard. Now, I must tell you, there is a rider on right of private defense.
See, in order to exercise the right of private defense, there has to be an apprehension that the aggressor might cause death or grievous hurt. In that event, if the right of in the right of private defense, the person who is exercising such right may even cause death of the aggressor. All right, in that scenario where there is a risk of grievous hurt or death, but a mere reasonable apprehension by itself is enough to put the right of private defense into operation. But it is also a settled position of law that a right of private defense is only a right to defend, not a right to retaliate. It is not a right to seek revenge. रिवेंज नहीं लेते हैं आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, आप डिफेंड करते हैं अपने आप को. मैं इसका एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर होगा. एक आदमी है, उसके घर पे बी जाता है और उसके साथ बदतमीज़ी करता है, मारपीट करता है. ठीक है. अब जब वो उसके घर गया, मारपीट कर रहा था, इस स्पॉट पे अगर वो आदमी, लेट अस सपोज हम उसको ए नाम से बुलाते हैं, जिसके खिलाफ अग्रेशन किया बी ने, ए ने अगर आप उसी वक्त अपने आप को डिफेंड किया होता तो वो तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आ जाता. बट नाउ इमेजिन ए जो है ना 2 दिन कुछ नहीं बोलता, तीसरे दिन वो बहुत सारे लोग लेके जाता है और बी को खूब मारता है. नाउ दिस इज़ नॉट अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. यहाँ पे ए ने क्या किया, ए ने रिवेंज लिया है. अब रिवेंज लेने की वजह से ए ने जो भी एक्ट्स किए हैं, ये लॉ में उसको उसकी एक्ट के लिए पनिश किया जाएगा. यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं था, क्योंकि जो पीरियड जो लैप्स कर गया ना, इस लैप्सिंग पीरियड के दौरान उसके पास टाइम था टू हैव रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज़. वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता था, लॉ को मोशन में ला सकता था, पर नहीं लाया. ही रादर वेटेड फॉर 3 days. He accumulated 3 or 5 persons and then went to B's house to beat him. In that scenario, he'll be liable for his individual acts. तो यहाँ पे B को भी लाइबल करेंगे अगर A उसके खिलाफ केस फाइल करता है, और A की जो एक्ट्स थी, जो उसने 3 दिन बाद B को मारने के लिए लड़कों को ले गया और फिर मारा, तो उन इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए ए भी लाइबल होगा. तो यहाँ पे दोनों पार्टीज लाइबल होंगी अपनी इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए. यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, यहाँ पे ए ने प्योर केस ऑफ रिवेंज दिखाया है. अभी तो ये मैंने आपको सिंपल इलस्ट्रेशन दिया है, धीरे धीरे मैं इसे और कॉम्प्लेक्स करता जाऊँगा, सो दैट यू एग्जैक्टली नो वेयर द लिमिट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज. तो धीरे धीरे हम इस पर चलेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नुआंस टॉपिक. So, right of private defense of person and property is recognized in all free countries which are civilized democratic societies, but right of private defense is always exercised within reasonable limits. Those limits are dictated by 2 considerations. First, he has the same right and it is claimed by all the members of the society. So, उस country की जो society है, उसमें जितने भी members हैं उसके पास right of private defense होता है. Second is, state which generally undertakes the responsibility for maintaining law and order, the citizens as a general rule are neither expected to run away for safety when faced with grave or imminent danger to their person or property as a result of unlawful aggression, nor they are expected by the use of force to right the wrong done to them or to punish the wrongdoer of the commission of the offense. तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? पहला कि एक तो ये राइट सबके पास होता है अपने आप को डिफेंड करने का. दूसरा, जनरली ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना पड़ता है. वी कैन नॉट इंडल्ज इन विजिलेंटिज्म इन द नेम ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. यहाँ पे बैटमैन नहीं बन सकता आदमी कि अब मैं विजिलेंटिज्म करूँगा और जगह जगह लोगों को मारूंगा. सो यहाँ पे बैटमैन बनना नहीं होता. यहाँ पे होता है कि इमिनेंट डेंजर देखा, उसको स्पॉट पे रोक दिया. इट डजेंट मीन दैट यू बिकम अ पुलिस फोर्स इन योर सेल्फ. प्राइवेट मिलिशिया नहीं बन सकते हम लोग. ऑलराइट, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक डेंजर को वार्ड ऑफ कर सकते हैं. बट जब इतना टाइम है और इतनी फैसिलिटी है वेयर वी कैन हैव रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी, देन वी आर एक्सपेक्टेड टू हैव रिकोर्स टू द स्टेट अथॉरिटीज़, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है. ऑलराइट, इट इज़ नॉट आर जॉब टू राइट द रॉन्ग, एंड इफ़ वी डू, वो हो सकता है वो रिवेंज में आ जाए, वो हो सकता है वो रिटेलिएशन में आ जाए, तब वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं कहलाएगा. ऑलराइट, सिमिलरली ग्लैनविल विलियम्स ने भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कुछ कहा है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट extreme pacifists aside, virtually everyone agrees that it is sometimes morally permissible to engage in private defense
that is to the extent of even inflicting serious or even lethal harm upon another person in order to protect oneself or some innocent third party from suffering the same. The basic principle underlying the doctrine of the right of private defense is that when an individual or his property is faced with danger and the immediate aid of the state machinery is not readily available, the individual is entitled to protect himself and his property. The right of private defense is only to one who is suddenly confronted with the necessity of averting an impending danger, not of self-creation. This is very important, you must write it down. Right of private defense is available only to the one who is suddenly confronted. Suddenly मतलब अचानक से आपको वो डेंजर मिल जाए, और नेसेसिटी स्पॉट पे होनी चाहिए टू अवॉइड दैट इम्पेंडिंग डेंजर जो आपका बनाया हुआ ना हो. इससे एक और प्रिंसिपल निकल के आता है कि अग्रेसर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बहाना नहीं ले सकता. ऑलराइट, ये अभी मैं आगे के केसेस में इलस्ट्रेट करूंगा अच्छे से, पर अभी आप एक प्रिंसिपल लिख लीजिए. अग्रेसर कैन नॉट क्लेम द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. Continuing with the quote, that being so, the necessary corollary is that violence which the citizen exercises while defending himself or his property is entitled to use only that force which is reasonable with regard to the circumstances. He cannot exercise disproportionate amount of injury when we compare it to the sense of danger that is impending upon him. All right, तो मान लीजिए कोई आपकी नाक पकड़ रहा है, आपने उसके पैर पे गोली मार दी, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट है कि नहीं? आप उसका हाथ पकड़ के साइड में भी हटा सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मुक्का मार देते, दांत तोड़ देते, पर ये थोड़ी ना आपने उठा के गोली ही मार दी. सो दैट इज एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ऑफ कोर्स यू माइट थिंक दिस इज एन एग्जैजरेटेड एग्जाम्पल, बट दिस इज एन एग्जाम्पल विच इज़ क्या कहते हैं, उसके 4 कंटोर्स में आता है. हालांकि इन दिस सिचुएशन it will be called that you have exceeded your right of private defense. ऐसा illustration legislature ने भी दिया है, so that is why I am using that expression. So always know कि एक reasonable force exercise करने का right होता है. ये नहीं होता है कि आपके पास unlimited right है कि आप बजूका या ग्रेनेड ले आए, उसके घर को उड़ा दिया और जितना भी वो दिख रही है उसकी जनरेशन सब उड़ा दिया in the name of right of private defense. That you cannot exercise. The right of private defense should be reasonable. जो भी force आप exercise करें in right of private defense, that should be reasonable. Let us suppose a man has a knife and he intends to attack you. Now you take out your gun or pistol, whatever you have, and you shoot him. Now that is covered under the right of private defense. You won't be penalized for that. आपका उस पर conviction नहीं हो सकता. But suppose the man is only, let us suppose, grabbing you by your nose or grabbing you by your rear, and he wants to take you to a particular location, show you, see what you have done. You know, teachers sometimes grab students by their ear and take them to a particular location, see child what you have done. So in that situation, probably I am about to take one of the most, let us, for the lack of a better word, a very depraved example. But since we are belonging to the legal society, we often encounter these depraved circumstances in our real experience as well. So let us suppose a student in the right of exercise of private defense actually shoots such teacher who is grabbing that student by his ear. So can it be said that he has exercised reasonable force? The answer is no. He has not exercised reasonable force. He has exceeded his right of private defense. That force is not reasonable. Not at all reasonable. All right. So you must understand that the degree of force used is also relevant for the purpose of right of private defense. How will you determine what is reasonable and what is not reasonable? I'll tell you. It is determined primarily on the basis of fact and circumstances of the case. But when I'll give you illustrative cases now, you will properly know that what is the line, that if you cross that line, you will be liable for your individual acts, and what is the actual limit of the right of private defense. We'll come to that as the time comes. Right now you first know some of the definitions, which is very essential before we start with it. So primarily you need to remember that even according to section 99 of the IPC also, the injury which is inflicted by the person exercising the right should commensurate with the injury which is threatened. Commensurate मतलब बराबर होनी चाहिए. All right.
या उससे मिलती जुलती होना चाहिए, डिसप्रपोर्शनेट नहीं होनी चाहिए. At the same time, it is difficult to expect from a person exercising his right in good faith to weigh with golden scales what the maximum amount of force is necessary to keep within the right. Every reasonable allowance should be made for the bona fide defender. तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि is the right of private defense intended to be measured with golden scales? The answer is no. ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है यूपी, बिहार और उत्तराखंड में और एमपी में भी. The courts in one voice have said that it would be wholly unrealistic to expect a person under assault to modulate his defense step by step according to the attack with the mathematical exactitude. That is not expected by law. The courts have always consistently held that a right of private defense extends to killing of the actual or potential assailant when there is a reasonable and imminent apprehension of the atrocious crime enumerated within the clauses of section 100 of the IPC. According to the combined effect of the two clauses of section 100 of the IPC, taking life of the assailant would be justified on the plea of private defense if the assault causes reasonable apprehension of death or grievous hurt to the person exercising that right. A person who is in imminent and reasonable danger of losing his life limb may, in the exercise of right of private defense, inflict any harm, even extending to death, on his assailant, either when the assault is attempted or directly threatened. तो बेसिकली अगर आपका केस सेक्शन 100 के अंदर आ जाता है या सेक्शन 103 के अंदर आ जाता है इंडिया के सिनेरियो में, आईपीसी सेक्शन 100 and 103 of the IPC, तो in that situation your right to private defense even extends to causing of death. Generally सेक्शन 100 पॉपुलरली सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है कि ये जो राइट एक्सरसाइज हुआ है सेक्शन 100 का, अक्यूज ज़्यादातर यही डिफेंस लेता है कि उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन था डेथ और ग्रीवियस हर्ट का. तो ये सबसे पॉपुलरली यूज़ होते हैं. बाकी उसमें और भी क्लॉजेज हैं, अबडक्शन, किडनैपिंग, रेप एक्सेट्रा, काफ़ी चीज़ें उसमें. तो आपको ये समझना है कि सर्टेन सिचुएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डेथ कॉज करने पे भी एक्सटेंड करता है. नाउ क्या फैक्टर्स हम डिटरमाइन करेंगे टू कम टू दैट कंक्लूजन? व्हाट फैक्टर्स वुड वी डिटरमाइन? हमें केस में क्या देखना होगा एज द जज? हमें पूरा इंसिडेंट देखना होता है. सेकेंडली, इंजरीज अगर अक्यूज की बॉडी पे हैं या इंजरीज जो विक्टिम की बॉडी पे हैं, ये दोनों देखनी होंगी. तीसरा ये देखना होगा इमिनेंस ऑफ थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द पर्सन. फोर्थ इज इंजरीज कॉज्ड बाय द अक्यूज्ड. फिफ्थ इज circumstances whether the accused had time to have recourse to public authorities. ठीक है. और इंजरीज का नेचर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? क्या वो रीजनेबल है या नहीं, ये भी देखा जाता है. और फिर ये भी जानना, इंजरीज को इसलिए भी एग्जामिन किया जाता है ये जानने के लिए कि अग्रेसर कौन था, हु वॉज द अग्रेसर इन द केस. तो मैं आपको एक ब्रीफ एन्यूमरेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट केसेस दे देता हूँ जिससे आपको प्रिंसिपल्स थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाएं. ये जो केस हैं ये आपको बस समझने हैं अभी. इसके मैं अभी प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ. मैं अभी इलस्ट्रेटिव केसेस में कई फैक्चुअल वाले केसेस भी दूंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझिए कि जो प्रिंसिपल्स मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान में रखिए. फर्स्ट इज द लीगल पोजीशन विच हैज़ बीन क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस इज दैट द लॉ डज नॉट रिक्वायर अ सिटीजन, however law abiding he may be, to behave like a rank coward on any occasion. This principle has been enunciated in Mahandi versus Emperor. ठीक है, that was held by the Lahore High Court, and then it was also reiterated in Alingan Kunaiya and another versus Emperor, and also in Ranganatham Peraiya. So the law is crystallized. मैं आपको सबसे पुराने से सबसे लेटेस्ट तक लेके आऊँगा. Secondly, the law spells out that the right of private defense is available only when there is a reasonable apprehension of receiving the injury. The law makes it clear that it is necessary that the extent of right of private defense is that the force used must bear a reasonable proportion of the injury to be averted. That is, the injury inflicted on the assailant must not be greater than that is necessary for the protection of the person assaulted. A person in fear of his life is also not expected to modulate his defense step by step, but at the same time he should not totally be the injury caused should not be totally be disproportionate to in comparison to the danger to be averted. The next principle is
In a civilized society, this principle that I am narrating has been laid down in the state of Orissa versus Rabindranath Dalai. In a civilized society, the defense of a person and property of every member thereof is the responsibility of the state. Consequently, there is a duty cast on every person faced with the apprehension of imminent danger of his person or property to seek the aid of the machinery provided by the state. But if immediately such aid is not available, he has the right of private defense. Then we come to the case of Lakshman Sahu. Now we have come to the era of 1986. In Lakshman Sahu, Supreme Court said that it is needless to point out in connection that the right of private defense is available only to the one who is suddenly confronted with the immediate necessity of averting and impeding danger, not of his own creation. Then we come to the era of 1990s. So like quote a case law of 1993, Raghavan Achari versus State of Kerala. Supreme Court said, no court expects the citizen not to defend themselves, especially when they have already suffered grievous injuries. Similarly, in Jagtar Singh versus State of Punjab, Supreme Court says, the accused has taken a specific plea that a right of self-defense, and it is not necessary that he should prove it beyond reasonable doubt. But if the circumstances warrant that he has reasonable apprehension that the death or grievous hurt was likely to be caused to him by the deceased or his companions, then if he acted in the right of private defense, he would be doing so lawfully. Always remember, defense के ऊपर burden of proof किस level का होता है? It is of the level of civil proceedings, preponderance of probabilities का. डिफेंस को ये नहीं साबित करना होता है कि मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की जो प्ली ली है अब इसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करूँ. नहीं, डिफेंस को सिर्फ प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के लेवल पे प्रूव करना है. अब वो ओरल एविडेंस से भी प्रूव कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी प्रूव कर सकता है, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी प्रूव कर सकता है. प्ली मे अराइज फ्रॉम द रिकॉर्ड इटसेल्फ. ऑलराइट, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. विल कम टू ऑल दीज थिंग्स, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो मैं प्रिंसिपल्स अभी बता रहा हूँ इस पे बस ध्यान दीजिएगा कि ये प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि इट्स लाइक जस्ट नोइंग दैट ये वो पैरामीटर्स हैं जिस पे पूरा केस जज होता है. यही ये सारे पैरामीटर्स हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे पूरा केस जज होगा. सिमिलरली इन पुरान सिंह एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट सेड देयर इज दैट in following circumstances the right of private defense can be exercised. First, there is no sufficient time to have recourse to public authorities. Second, there must be reasonable apprehension of death or grievous hurt to the person or danger to the property concerned. 3, more harm than necessary should not have been caused. Alright, then we come to the case law of Bhagwan Sarup versus State of Madhya Pradesh. In this case, Supreme Court said that it was established on record that Ram Swaroop has given lathi blows by complainant party, and it was at the time that gunshot was fired by Bhagwan Swaroop to save his father from further blows. A lathi is capable of causing a simple as well as fatal injury. Whether in fact the injuries actually caused were simple or grievous is of no consequence. It is the scenario of a father being given lathi blows which has to be kept in mind. And we are of the view that in such a situation, a son could reasonably apprehend danger to the life of his father, and his firing a gunshot at that point of time in defense of his father is justified. तो यहाँ पे लाठी ब्लो वाला केस था कि उसके फादर को लाठी से अटैक कर रहे थे, तो बेटा आया, बेटे ने गोली चला दी. कोर्ट ने बोला कि लाठी सिचुएशंस में फेटल हो सकती है. अगर वाइटल पार्ट्स पे ना मारी जाए तो वो फेटल नहीं है, अगर सर पे मारी जाए तो वो फेटल है. तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अब अरिथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड से सन थोड़ी ना काम करेगा. सन को वहाँ पे सिचुएशन देखना था, वहाँ पे डेंजर उसको अप्रीहेंड करना था कि वो डेंजर सडनली अराइज हुआ था, एंड द सन वाज फुली अलाउड बाय लॉ टू यूज हिज गन टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ हिज फादर. ये केस इन पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी. अब इस केस का पॉइंट ये था कि यहाँ पे अरिथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड से काम नहीं करना. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस गोल्डन स्केल से मेजर नहीं किया जाता, वो सर्कमस्टेंसेस से मेजर किया जाता है कि वहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन डेंजर का था, और वहाँ पे ये सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे कि जो फोर्स यूज़ की गई है उन सर्कमस्टेंसेस में क्या वो रीजनेबल थी या नहीं. अब उसमें अगर मान लीजिए थोड़ी एक्सेसिव फोर्स यूज़ कर दी गई है पर टोटली एक्सेसिव नहीं, इतनी एक्सेसिवली भी नहीं यूज़ की गई कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एरिया से बाहर ही चली जाए, तो ऐसे केस में वो जितनी भी प्लीज़ हैं वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंडर ही आती हैं, उसके बाहर नहीं जाएंगी. जैसे कि भगवान स्वरूप में क्या हुआ,
लाठी ब्लो उसके फादर को दे रहे थे, उनका जो बेटा था उनकी जान बचाने आया, उसने गोली चला दी। तो क्या अपने फादर की जान बचाने के लिए गोली चलाना गलत था उस सिचुएशन में? द आंसर इज़ नो, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये कहना चाहता था कि देखिए लाठी का ही तो ब्लो दे रहे थे, लाठी तो अपने में फेटल नहीं हो सकती। कोर्ट ने बोला कि लाठी फेटल तो नहीं हो सकती अगर वो सर पे ना पड़े। अगर सर पे कोई मारने का इंटेंशन होता तो, और सन को कैसे पता चलेगा कि वो सर पे मारेंगे या नहीं, उसको बता के थोड़ी ना कर रहे हैं वो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करना है। इस केस के फैक्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केस को पे ध्यान दिया वो सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। क्या वो लाठी मार रहे हैं, अब सर पे मार देंगे तो हो सकता है फादर मर जाए। तो जो रीजनेबल एप्रीहेंशन सन के दिमाग में था ये था कि वो फादर की जान लेने आए हैं, तो जान भी नहीं लेंगे तो कम से कम ग्रीवियस हर्ट तो हो ही जाएगी। तो इन दैट सिचुएशन हिज केस वॉज कवर्ड अंडर सेक्शन 100। देन इन अकॉर्डेंस विद दैट ही एक्सरसाइज्ड अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स। तो इस केस में देखा गया था कि वो रीजनेबल फोर्स था। ध्यान रखिएगा, ये हर चीज़ में कट एंड राइट इसका आंसर नहीं होता। अभी मैं आपको कई फैक्ट्स ऐसे बताऊंगा इलस्ट्रेटिव केस में जो उन सिचुएशंस पे एकदम टोटली ऑपोजिट होल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वहाँ पे रिटेलिएशन था, रिवेंज लिया गया था। सर्कमस्टांसेस लगभग ऐसे ही थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपने राइट एक्सीज कर दिया, और या आपने क्या कहते हैं जो पैरामीटर्स थे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के उनके अंडर काम नहीं किया। तो वो मैं जब आपको केस बताऊंगा तो आप ये सारे केस एक टैंडम में समझिएगा, ठीक है। अभी बस मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ये चैप्टर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू द केस ऑफ कश्मीरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसका भी एक प्रिंसिपल है। A person who is unlawfully attacked has every right to counteract the attack upon his assailant and cause such injury as may be necessary to ward off the apprehended danger or threat. Now next case law, अब हम सन 2000 में आ गए हैं तो 2004 का केस लॉ कोट करता हूँ। जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। In this case, Supreme Court said, accused need not prove the existence of right of private defense beyond reasonable doubt. It is enough for him to show, as in civil case, that the preponderance of probabilities is in his favor. Now I come to the case of State of Madhya Pradesh versus Ramesh. In this case, Supreme Court said every person has a right to defend his own body and the body of another person against any offense affecting the human body. The right of self-defense commences as soon as the reasonable apprehension arises and it is coterminous, मतलब उसी के साथ खत्म हो जाएगा with the duration of such apprehension. Again, it is a defensive, not a retributive right. बदला लेने का right नहीं है, and can be exercised only in those cases where there is no time to have recourse to the public authorities. In Vindhya Singh versus State of Madhya Pradesh, Supreme Court said that the right of self-defense is a very valuable right, serving social purpose and should not be construed narrowly. Situations has to be judged from a subjective point of view of the accused concerned in the surrounding excitement and the confusion of the moment, confronted with a situation of peril, and not by any microscopic and pedantic scrutiny. In adjudging the question as to whether more force than that was necessary was used in the prevailing circumstance on the spot, it would be inappropriate, as held by the Supreme Court, to adopt the test by detached objectivity, which would be so natural in a courtroom, or that which would seem absolutely necessary to a perfect cool bystander. The person facing a reasonable apprehension of threat to himself cannot be expected to modulate his defense step by step with any arithmetical exactitude of only that much which is required in thinking of a man in ordinary times or under normal circumstances. तो कोर्ट ने बोला कि जब भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को जज करेंगे तो आप अक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करेंगे। आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि कोर्ट रूम के एनवायरनमेंट में कि वो कुछ और ऐसा भी कर सकता था, या कोई आप हाइपोथेसिस लें कि जो एक्ट्स अक्यूज ने की उसके अलावा भी ऑल्टरनेटिव उसके पास मौजूद था। कोर्ट बोलेगा आप सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखेंगे, आप अक्यूज का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, और वहाँ पे उन सर्कमस्टांसेस की वजह से जो कन्फ्यूजन अराइज होती है उनको ध्यान में रखते हुए जज करेंगे। कोर्ट रूम की डिटैच्ड ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से आप जज नहीं करेंगे, क्योंकि एसी रूम में बैठ के सोचना बहुत आसान है। स्पॉट पे जब क्राइम हो रहा होता है, अब उसको रोकना है, उसको अवर्ट करना है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। तो अगर मान लीजिए एक आदमी एकदम से किसी पे अटैक करता है, अब आदमी हड़बड़ा गया, अब हड़बड़ी में उसने मान लीजिए उसको मार दिया, और जो उसका पंच है वो उसकी थ्रोट पे लग गया और उसकी वजह से मौत हो गई मान लीजिए। तो ऐसे केस में प्रोसिक्यूशन कहता है कि नहीं, आप तो कहीं और भी मार सकते थे, आप पैर पे मारते, आप हाथ पे मारते, आप कंधे पे मारते, आपने थ्रोट पे कैसे मार दिया। तो
कोर्ट बोलेगा कि एकदम से आदमी आया, रॉब करने की कोशिश की, विजिबली अक्यूज्ड पर्सन कंफ्यूज था, अब उसने हड़बड़ी में अपने आप को बचाने के लिए मार दिया। अब उसको थोड़ी ना अंदाजा था कि वो एक ही ब्लो में मर जाएगा। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन नहीं देने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर वो आदमी मर जाता है, तो अगर प्रोसिक्यूशन कहता है कि आप कंधे पे भी मार सकते थे, पैर पे भी मार सकते थे, कहीं पे भी मार सकते थे, आप ज़रूरी था अपने थ्रोट पे मारा, तो कोर्ट सिंपली बोलेगा कि यू हैव टू जज इट इन अकॉर्डेंस विद दी सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेज, और अक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अभी कोर्ट के अंदर तो ये बोलना बहुत आसान है कि आप कितनी और जगह मार सकते थे। अब वो एक आदमी जो इमिनेंट डेंजर को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ी ना चलता है कि अभी मैं ये करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप ये लूँगा, फिर मैं थर्ड स्टेप ये लूँगा। वो तो इमीडिएटली हड़बड़ी में और विजिबल कन्फ्यूजन में काम करता है। वो तो किसी भी तरीके से वो कोशिश करता है जिससे उसकी जान बच सके। सो इन दैट सिचुएशन अक्यूज्ड पर्सन लायबल नहीं होगा। और प्रोसिक्यूशन के जो पॉइंट्स हैं कि आप एक पेडेंटिक अप्रोच लीजिए, एकदम ऑब्जेक्टिव डिटैच्ड अप्रोच लीजिए, अक्यूज्ड के पास 10 ऑप्शन थे पर उसने ये एक्सरसाइज किया, सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये ऐसे जज नहीं होता, ये हमेशा जज होगा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अक्यूज्ड के सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज, और उस सिचुएशन में जहाँ पे पेरिल अराइज हुई थी उन सबको चीज़ों को ध्यान में रख के करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि हम एसी रूम में बैठ के जजमेंट पास कर रहे हैं विदाउट इवन नोइंग द ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ द केस। ऑलराइट, तो ध्यान रखिएगा, दिस प्ली इज जज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अक्यूज्ड एज वेल। नाउ कमिंग टू द केस ऑफ जयदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, right of private defense is not measured in golden scales. As soon as the cause of reasonable apprehension has disappeared and the threat has either been destroyed or put to an end, there can be no occasion for the exercise of right of private defense. Reasonable apprehension एक बार ख़त्म हो गया, डेंजर ख़त्म हो गया, तब आप right of private defense नहीं एक्सरसाइज कर सकते। आप let us suppose a person is trespassing in your house, you beat him up, he runs away, फिर आप उसको ढूंढने निकल जाते हैं, वो भाग गया है। अब वो मान लीजिए शाम को आपको मिलता है वो कहीं पे, लेट अस सपोज 5 किलोमीटर दूर, आप उसका घर ढूंढ लेते हैं, एंड देन यू बीट हिम अप देयर ऑल्सो। अब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं काम कर रहा, नाउ यू आर टेकिंग रेट्रीब्यूशन, दैट इज़ नॉट अलाउड। ऑलराइट, सो ऑलवेज रिमेंबर, जब डेंजर ख़त्म हो जाता है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी ख़त्म हो जाता है। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कितनी देर रहेगा, किन सर्कमस्टेंसेस में काम करेगा, कब ख़त्म हुआ, ये फैक्टर सर्कमस्टेंसेस से पता चलता है। फाइनली अब मैं 2 केसेस और पढ़ूंगा और उसके बाद विल स्टार्ट विद लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस अंडर आईपीसी। अब जो पहला केस है वो मैं बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का पढ़ूंगा। नेक्स्ट केस जो होगा वो दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का पढ़ूंगा। आपको अगर कोई केस याद करना हो जिसमें सारे प्रिंसिपल समराइज्ड हो तो दर्शन सिंह का करिएगा। सो बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ नोट की थी और बोला कि अ पर्सन हु इज एप्रीहेंडिंग डेथ और बॉडीली इंजरी कैन नॉट वे इन गोल्डन स्केल्स in the spur of the moment and in the heat of circumstances the number of injuries required to disarm the assailant who were armed with weapons। तो सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली ये कह रहा है, और ये बातें वो प्रोसिक्यूशन को ही ज़्यादातर बताता है, तभी नोटेड है जजमेंट में, कि अगर प्रोसिक्यूशन ये वाले पॉइंट्स उठाता है कि आपने 6 इंजरी करने की क्या ज़रूरत थी, 2 इंजरी में ही आप डिसार्म कर सकते थे, तो कोर्ट ने बोला कि देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को गोल्डन स्केल्स में नहीं मेजर किया जाता है, यहाँ पे स्पर ऑफ द मोमेंट और हीट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चीज़ें देखी जाती हैं। अगर मान लीजिए अक्यूज ने एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा इंजरीज कॉज कर दी तो वो ग्राउंड उसके खिलाफ नहीं जाएगा बाय इटसेल्फ, अनलेस ये प्रूव हो जाए कि वो रिटेलिएट कर रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज कर रहा है, वो रिवेंज ले रहा है, या वो हिमसेल्फ इज एन एग्रेसर, वो बातें अलग हैं। लेकिन हीट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस में अगर आदमी अपने आप को बचाने के लिए 1 इंजरी कॉज करने के बजाय 6-7 इंजरी कॉज कर देता है क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, तो ऐसे केस में द कोर्ट विल से कि इट इज़ फाइन, यू आर नॉट सपोज टू weigh the entire thing on golden scales. Continuing in this case, Supreme Court says, in the moment of excitement and disturbed mental equilibrium, it is often difficult to expect the parties to preserve composure and use exactly only so much force in retaliation to commensurate with the danger apprehended to him, where assault is imminent by the use of force. It would be lawful to repel the force in self-defense, and the right of private defense commences as soon as the threat becomes so imminent. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक्साइटमेंट की वजह से
एक आदमी का, एक कॉमन मैन का अपना जो मेंटल बैलेंस है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो एग्जैक्टली वो इस पोजीशन में नहीं रहता कि वो एकदम एग्जैक्टली उतने ही राइट एक्सरसाइज करता है जितना ज़रूरी है फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस में। कभी कभी थोड़ा एक्सीड कर जाता है, तो वो जो कुछ लेवल तक जो एक्सीड कर जाता है दैट इज़ फाइन, वो इट विल स्टिल बी कवर्ड इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। लेकिन एक कैटेगरी आएगी आगे जिसमें आप इतना ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं जहाँ पे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं रह जाता, वो रिटेलिएशन हो गया है या वो रिवेंज हो गया है। सो इन दैट केसेस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। तो ध्यान रखिएगा कि लिमिटेशंस क्या हैं। कंटिन्यूइंग फर्दर, सुप्रीम कोर्ट सेज सच सिचुएशंस हैव टू बी pragmatically viewed and not with high powered spectacles or microscopes to detect slight or even marginal overstepping. छोटी मोटी overstepping is allowed. Supreme Court is basically saying that. Due weightage has to be given and hyper-technical approach has to be avoided in considering what happens on the spur of the moment on the spot and in keeping the view of the normal human reaction and conduct where self-preservation is the paramount consideration. But if the fact situation shows that in the guise of self-preservation what really has been done is to assault the original aggressor even after the cause of reasonable apprehension has disappeared, the plea of private defense can be legitimately be negatived. The court dealing with the plea has to weigh the material to conclude whether the plea is acceptable. It is essentially a finding of fact. तो ये फाइंडिंग ऑफ फैक्ट होता है, फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है. सो कीप दिस डिक्टम इन माइंड. नाउ आई कम टू दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इसमें इन्होंने सारे प्रिंसिपल्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के समराइज कर दिए हैं एक एक लाइन में. द फर्स्ट इज सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट. ये 2010 का केस है बाय द वे. Self preservation is the basic human instinct and it is duly recognized by the criminal jurisprudence of all civilized countries. All free, democratic and civilized countries recognize the right of private defense within certain reasonable limits. Second is, right of private defense is only available to the one who is suddenly confronted with the necessity of averting an impending danger, not of self-creation. Aggressors generally cannot claim the right of private defense. Third is, mere reasonable apprehension is enough to put the right of self-defense into operation. In other words, it is not necessary that there should be an actual commission of the offense in order to give rise to the private defense. It is enough if the accused apprehended that such an offense is contemplated and it is likely to be committed if the right of private defense is not exercised. The right of private defense, next principle is that the right of private defense commences as soon as the reasonable apprehension arises and it is coterminous with the duration of the apprehension. तो तब भी खत्म हो जाता है जब रीजनेबल एप्रीहेंशन खत्म हो गया. रीजनेबल एप्रीहेंशन ही एनफ होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को मोशन में लाने के लिए. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंजरी कॉज होनी चाहिए कि तब आप जाके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करें. एप्रीहेंशन बाय इटसेल्फ इज एनफ. अगर रात को आपके घर पे कोई रॉबर घुस आया है तो यू वोंट वेट टिल ही कमिट्स द ऑफेंस. दैट एप्रीहेंशन इज एनफ फॉर यू टू एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. नेक्स्ट इज, it is unrealistic to expect a person under assault to modulate his defense step by step with any arithmetical exactitude. Sixth is, in private defense, the use of force by the accused ought not to be wholly disproportionate or much greater than necessary for the protection of the person or property. Next principle is, it is well settled that even if the accused does not plead self-defense, it is open to consider such a plea if the same arises from the material on record. इसका ये मतलब है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली इम्प्लाइड भी हो सकती है अगर फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस और जो एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है वो ये दिखाता है कि जो इंजरीज कॉज हुई हैं वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कॉज हुई हैं और उसी चीज़ का अक्यूज़ के ऊपर केस लगा है. तो हाँ, भले ही अक्यूज़ ने एक्सप्रेसली प्ली ना ली हो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, तब भी विल बी गिवन बेनिफिट ऑफ दैट. ये दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में रिकॉग्नाइज किया गया है. Eighth principle is that the accused need not prove the existence of the right of private defense beyond reasonable doubt. Ninth is, IPC confers the right of private defense only when the unlawful or wrongful act is an offense. Lawful acts के लिए right of private defense नहीं होता. तो let us suppose मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ एंड अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट मैं आपको अरेस्ट करने आता हूँ. कोर्ट ने एक वारंट ऑफ अरेस्ट दिया हुआ है और मैं आपको अरेस्ट करने आता हूँ. मैं एक लॉफुल चीज़ एक्सरसाइज कर रहा हूँ. अब आप
रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के नाम पे मुझे पीट दें, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के नाम पे कहें कि नहीं मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, नाउ आई विल असॉल्ट यू, नाउ आई विल अटैक यू. सो इन दैट सिचुएशन what you have done is not right of private defense. You have committed an offense. बहुत सारे ऑफेंस आपने कमिट कर दिए. एक तो आपने एक पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी मारा, दूसरा आपने जो ऑफेंस कमिट किया है ये किसी भी हाल में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं आता है, इसलिए क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन ओनली बी अगेंस्ट अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट्स विच आर ऑफेंसेज. अगर मैं लॉफुल काम कर रहा हूँ तो उसमें आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज कर सकते. ऑलराइट, सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कभी भी लॉफुल एक्ट्स के लिए के खिलाफ यूज़ नहीं हो सकता. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नेवर बी यूज्ड फॉर एनी लॉफुल एक्ट. जैसे अगर आप अपने घर में लेट अस सपोज कोई काम कर रहे हैं, कोई दूसरा आदमी आ जाए और बोले कि मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप ही के घर पे एक्सरसाइज करूँगा, तो आप बोलोगे क्यों, मेरे घर पे क्यों एक्सरसाइज करेंगे, आप अपने घर पे करिए, और आपके पास तो कोई ग्राउंड भी नहीं है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने का. एंड इफ़ ही रेजिस्ट यू और ये बोले कि मैं तो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था और ये मेरे रास्ते में आ गए तो मैंने इनको हटा के इन्हीं के घर पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया, इन दैट सिचुएशन जो इस सेकेंड आदमी ने किया है आपके घर पे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, वो हाउस ब्रेकिंग है. ऑलराइट, तो अगर जब उसने हाउस ब्रेकिंग कमिट की, ज़बरदस्ती आपके घर पे आ गया, तो क्रिमिनल ट्रेसपास भी हो जाता है. फिर नेक्स्ट स्टेज उसकी होती है क्रिमिनल ट्रेसपास की हाउस ब्रेकिंग, और वो आराम से वही काम कर रहा है. तो इन दैट सिचुएशन में वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी भी हाल में नहीं कहलाएगा, वो ऑफेंस है सिंपली से टर्म. ऑलराइट, सिमिलरली एक ऐसी सिचुएशन समझ लीजिए कि एक मैजिस्ट्रेट है, वो मान लीजिए अक्यूज्ड को अरेस्ट करने स्पॉट पे आता है, या इंस्पेक्शन उसके घर पे इंस्पेक्शन करना चाहता है, सर्च को लेके कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं प्रेजेंट रहूं जिससे मैं ये देखूं कि कोई डॉक्यूमेंट प्लांट ना हो, अगर सर्च से कोई चीज़ सीज होती है तो मैं उसका मेमो रिकॉर्ड कर लूँ. मैजिस्ट्रेट भी स्पॉट पे, वो आपके घर आता है, वो लॉफुल काम कर रहा है, ऐसे में आप उसको पीट देते हैं, कहते हैं कि आपने ट्रेस पास किया है. अब ऐसे में जब उसके पास वारंट है, लॉ अलाउ करता है, तो आप हैं जिसने ऑफेंस किया है. ऑलराइट, यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नेवर बी यूज्ड अगेंस्ट अ लॉफुल एक्ट. तो इफ द मैजिस्ट्रेट हैज़ द अथॉरिटी विच ही डज इन लॉ, देन इन दैट सिचुएशन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी exercised in that scenario where the search is under a pursuant of a search warrant and the magistrate wants to personally monitor the search on the spot. In that situation you cannot exercise the right of private defense against him. तो एक ये हो गया. Last is, and the last principle is, a person who is in imminent and reasonable danger of losing his life or limb may in exercise of self-defense inflict any harm, even extending to death, on his assailant, either when the assault is attempted or directly threatened. Alright, so this was it as far as Darshan Singh was concerned. एक केस आप याद रखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक और प्रिंसिपल, ये दर्शन सिंह में नहीं था, ये मैं अलग से बता रहा हूँ. एक फ्री फाइट जब होती है ना, कि मान लीजिए दो ग्रुप्स आ जाते हैं राइवल फैक्शन और कहते हैं कि आज हम लोग सेटल कर लेंगे, या तो आर या तो पार, ठीक है, दोनों राइवल ग्रुप्स आते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं. तो ऐसे केस में जो दोनों ग्रुप्स हैं ना, ये फ्री फाइटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. सो इन अ फ्री फाइट वन पार्टी कैन नॉट क्लेम टू हैव एक्सरसाइजिंग टू one party cannot be claimed to be exercising his right of private defense against the other. Both is liable for their individual acts. ये याद रखिएगा. This is the case law विश्वास अबा कुराने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. फ्री फाइट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है, जहाँ पे क्योंकि दोनों ही लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, दोनों कहते हैं कि हाँ ठीक है आज हम लोग अपने मैटर सेटल कर लेंगे ट्रेडिशनल वे की तरह, ट्रायल बाय कॉम्बैट करते हैं. आई थिंक 1800 से पहले ट्रायल बाय कॉम्बैट होता भी था. इन 16th सेंचुरी इन 15th सेंचुरी, उससे पहले ये एक अजम्पशन होता था कि जब दो लोग लड़ाई करेंगे तो वही जीतेगा जिसके फेवर में डिविनिटी इंटरफेयर करेगी, गॉड जिनके फेवर में इंटरफेयर करेगा. ये ब्रिटिश स्टैट्यूट बुक्स का पार्ट था. आई थिंक 1840s में इसको रिवोक किया गया था या 1820s में इसको रिवोक किया गया था. ट्रायल बाय कॉम्बैट तब नहीं था, पर ट्रायल बाय कॉम्बैट फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम हैज़ बीन द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ब्रिटिश कॉमन लॉ. पार्ट रहा है उसका. वहाँ पे ज़्यादातर लोग मान लीजिए अगर एक आदमी स्ट्रांग है और दूसरा आदमी वीक है,
तो अक्सर स्ट्रॉन्ग आदमी कहता था ट्रायल बाय कॉम्बैट करवा लो। तो वहाँ पे ये प्रिजम्पशन था ब्रिटिश आइल्स में, यूके में जनरली, कि डिविनिटी उसके फेवर में इंटरफियर करेगी जो सही है। तो अगर स्ट्रॉन्ग आदमी जीत गया तो इसका मतलब गॉड उसकी साइड पे। ऑलराइट, सो दैट वाज एन अब्राहमिक क्रिश्चियन व्यू इन दैट सिनेरियो। ऑफ कोर्स इट वाज रॉन्ग बिकॉज in these kinds of scenarios it is only the strong person who always wins. It is never the weak person. So it was a flawed concept, and the trial by combat was, as the society became more civilized, was repealed by the acts of parliament. तो ध्यान रखिएगा, फ्री फाइट में, आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट, फ्री फाइट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। दोनों पार्टीज अपनी इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए लायबल होंगे। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन दे देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे ये इंश्योर करना है कि बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग द मेन सेक्शंस आप लोग को ये सारे पॉइंट समझ में आते हैं, क्योंकि फिर उसी के प्रिंसिपल्स पे आप जज करेंगे। जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा फिर समझना भी आसान हो जाता है। अगर मान लीजिए ए का एक ग्रुप है 10 लोगों का और बी का एक ग्रुप है 10 लोगों का, उन्हें एक प्रॉपर्टी पे, उन दोनों का एक प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है। प्रॉपर्टी का नाम है एक्स। ए कहता है वो प्रॉपर्टी मेरी है, एक्स की प्रॉपर्टी मेरी है, और बी कहता है नहीं एक्स की प्रॉपर्टी मेरी है। दोनों कहते हैं कि चलो हम लोग ऐसा करते हैं, ये मुद्दा लड़के सॉल्व कर लेते हैं, जो जीतेगा प्रॉपर्टी उसकी। दोनों आते हैं आपस में झगड़ा करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये दोनों राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये दोनों राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे दोनों पार्टीज अपनी इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, जो भी एक्ट कमिट हो। सेकेंडली, अगर मान लीजिए एक स्कूल ग्रुप है CMS का, दूसरा स्कूल ग्रुप है दिल्ली पब्लिक स्कूल का, दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। कहने ये बात साबित करने के लिए कि कौन सा स्कूल सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। ये दोनों ही फ्री फाइट में एक्ट कर रहे हैं और इन दोनों के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। दे आर लाइबल फॉर देयर इंडिविजुअल एक्ट्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद सेक्शन 96, थिंग्स डन इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज done in the exercise of right of private defense. What will you read this sections in this chapter with? Section 105 of the Indian Evidence Act. I think it is self clear section 96 की अगर right of private defense में कुछ भी किया गया है तो offense नहीं माना जाता। A right of private defense of the body and property. Every person, section 96 पढ़ रहा हूँ, every person, sorry section 97 पढ़ रहा हूँ, right of private defense of the body and property. Every person has a right subject to the restrictions contained in section 99 to defend first his own body and the body of other person against offenses affecting human body. तो offenses against human body का जो चैप्टर है offenses against affecting human body under IPC, उसमें जितने भी offenses आते हैं, hurt, grievous hurt, murder, culpable homicide, attempt to murder etc., जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, और kidnapping, abduction, रेप, ये सारी जितनी भी चीज़ें आती हैं, सेक्शन 97 यही बता रहा है कि आपके पास सिर्फ अपने आप को बचाने का हक ही नहीं है, आप दूसरों को बचाने के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हो सकता है सिचुएशन पे असॉल्ट किसी और पे हो रही हो, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट किसी और पे हो रहा हो, बट यू as a responsible citizen can exercise the right of private defense to save that person. All right, and in exercise of that right of private defense you may even attack the aggressor and if possible either to ward him off, and if the case is such, situation is such where the apprehension is of death or grievous hurt, you may even kill that person who is actually creating the situation of imminent danger. ठीक है, तो जो भी अटैक कर रहा है आपको या किसी और पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को, किसी ऐसे मैटर से या किसी ऐसे ऑफेंस या कोई ऐसा ऑफेंस करना चाहता है विच इज़ कवर्ड बाय द चैप्टर 16 विच इज़ ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, तो ऐसे केस में अगर कोई ऐसा करता है आइदर आपके खिलाफ या किसी और पर्सन के खिलाफ, और आप देख रहे हैं कि वो किसी और पर्सन के खिलाफ कर रहा है, कोई भी पर्सन, देन यू हैव द राइट टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, नॉट ओनली इन योर फेवर बट ऑल्सो इन द फेवर ऑफ अदर पर्सन। ठीक है,
Secondly, the property, whether movable or immovable, of himself or any other person against any act which is an offense falling within the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass. अब ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का जो राइट है वो उतना वाइड नहीं है जितना पर्सन को डिफेंड करने का राइट है. ठीक है, बॉडी को डिफेंड करने का राइट वाइडर है, प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का राइट थोड़ा कम है, चाहे वो आपका हो या किसी और का हो. इसमें सिर्फ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ या क्रिमिनल ट्रेसपास या इनके अटेम्प्ट के लिए कर सकते हैं. तो ये मार्क कर लीजिए. ठीक है, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ या क्रिमिनल ट्रेसपास, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं व्हेन द मैटर रिलेट्स टू प्रॉपर्टी. और चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो चाहे दूसरे की प्रॉपर्टी हो, दोनों के लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेदर द प्रॉपर्टी बी मूवेबल और इमूवेबल. ये बात यहाँ पे एकदम एक्सप्रेसली क्लियर है. ठीक है, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और अदर पर्सन, चाहे खुद की चाहे दूसरे की, आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं. पर ऑफेंस कौन से होने चाहिए? अनलाइक फर्स्ट क्लॉज की तरह, देखिए लेजिस्लेचर ने फर्स्ट क्लॉज में तो लिख दिया कि चैप्टर 16 में जितने ऑफेंसेस आते हैं उसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, बट ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी में लेजिस्लेचर ने बता दिया कि किन ऑफेंसेस पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और विच इज एन अटेम्प्ट देयर ऑफ. तो ये ध्यान रखिएगा, ये उतना वाइड नहीं है. इट विल मेक सेंस लेटर, तो मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 98, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. When an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by the reason of youth, the want of maturity, of understanding, the unsoundness of mind or intoxication of the person doing the act, or by the reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. ये जो वर्ड्स यूज़ किए हैं लेजिस्लेचर ने, ये आपको कुछ रिमाइंड कर रहे होंगे. ये सारे आपने अभी तक जितने भी एक्सेप्शंस पढ़ते आए हैं ना, डोलिन का पैक्स, डोली का पैक्स, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स, ये सब उन्हीं को कवर कर रहा है. तो इसको मार्क कर लीजिए, रीजन ऑफ यूथ, मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन और मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन. अब इलस्ट्रेशन इसके दिए हैं. आई थिंक इलस्ट्रेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इस पर मैं आपको केस भी बताऊंगा. इलस्ट्रेशन है, Z under the influence of madness attempts to kill A. Z is guilty of no offense, but A has the same right of private defense which he would have had if Z were sane. तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर एक पागल आदमी आपको अटैक कर दे, तो पागल आदमी अपनी इंसैनिटी में, अगर मान लीजिए उसको ये नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, उसको 84 का डिफेंस मिलेगा तो वो तो क्विट हो जाएगा. पर आपकी तो जान चली जाएगी ना अगर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज किया. तो अगर आपने पागल आदमी की जान ले ली अपने आप को बचाने के लिए, तो क्या वो ऑफेंस है या नहीं? तो सेक्शन 98 उसे क्लैरिफाई कर देता है कि वो ऑफेंस नहीं है. अगर आपने अपनी जान बचाने के लिए एक पागल आदमी की जान ले ली क्योंकि वो आप पे अटैक कर रहा है, वो नहीं जानता वो क्यों कर रहा है, तो इवन देन इट इज जस्टिफाइड. ऑलराइट. Secondly, A enters by night a house which he is legally entitled to enter. Z, in good faith, taking A for a housebreaker, attacks A. Here, Z, by attacking A under this misconception, commits no offense, but A has the same right of private defense against Z which he would have if Z were not acting under that misconception. तो बेसिकली इस केस में क्या बता रहा है कि ए के पास एक राइट है प्रॉपर्टी के अंदर आने का, ही इज लीगली इंटाइटल्ड. जी को मान लीजिए रात के अंधेरे में आ रहा है, जी को लगता है कि वो ए नहीं है, वो हाउस ब्रेकर है, मान लीजिए जी अटैक कर देता है उस पर, तो ए के पास राइट है अपने आप को बचाने का, इवन दो जी वॉज एक्टिंग अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट. जी के एक्ट्स के लिए जी को सजा ना होती, पर अगर Z जब वो कृत्य कर रहा है, when Z is committing those acts, तो अगर A अपने आप को बचाने के लिए उस पर हमला करता है, ठीक है, जब A अपने आप को बचाने के लिए, लेट्स सपोज ही यूजेस
some amount of force, then in that situation A भी liable नहीं है, उसके पास भी वही right है अपने आप को बचाने का, even though he was acting under a misconception of fact. सेक्शन 98 एक क्लैरिफिकेटरी सेक्शन है, वो ये कह रहा है कि ये मत समझ लीजिएगा कि कोई चीज़ अगर जनरल एक्सेप्शंस के किसी पार्ट में आ रही है तो आपके पास उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने का कोई राइट नहीं है. आपके पास राइट है, ठीक है, बशर्ते ये ज़रूर होना चाहिए कि आप अग्रेसर ना हो, ठीक है. ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, नॉट अ राइट ऑफ रिटेलिएशन. तो अगर कोई पर्सन मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में आप पे अटैक करता है, लेट अस सपोज ही थिंक्स यू आर अ रॉबर, इन दैट सिचुएशन आप रॉबर नहीं एंड यू आर लीगली एंटाइटल्ड टू गो देयर, then you also have a right to defend yourself and use as reasonable amount of force as the fact and circumstances determine and whatever you think just in those circumstances. Reasonable amount of force होनी चाहिए, not excessive. All right. अब इसमें एक केस बताता हूँ. It is a case of Emperor versus Abdul Hamim. A policeman raided the house of the accused at night. रात को एक पुलिसमैन की टीम उसके घर पे घुस गई. अक्सर एक प्रैक्टिकली आपके बात बताता हूँ, पुलिस वाले ज़्यादातर रात को रेड मारते हैं अराउंड 12 से 3 बजे के बीच, क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इन लोग के साथ. दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू. दिन में रेड बहुत कम पड़ती हैं, प्राइमरली रेड हमेशा रात को पड़ती हैं. सो पुलिस मैन रेडेड द हाउस ऑफ द अक्यूज्ड एट नाइट. द अक्यूज्ड वाज स्लीपिंग एंड वाज अवेकेंड बाय सम नॉइसेस एंड रश्ड आउट ऑफ द रूम. द पुलिस मैन फायर्ड एट हिम. पुलिसमैन ने गोली चला दी उसके ऊपर कि कौन भाग रहा है, अक्यूज पर्सन भाग रहा है. अब अक्यूज्ड को भी यहाँ पे नहीं पता ये पुलिस है. All right. In this case, accused never knew that these were the policemen. He fired back at the policemen, and he never knew who they were. In this case, the accused person was under a mistake of fact with regards to the identity of the police officer. This gave him the right to private defense to save his own body and property from the trespasser. तो वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, क्योंकि वो अगर फैक्ट्स उसे पता होते तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब ना एक्सरसाइज कर पाता, क्योंकि तब वो जानता है वो पुलिस ऑफिसर है. लेकिन रात में जब देर रात में पुलिस उसके घर पे घुस गए, उसको ध्यान नहीं कि कौन है, उसको लगा ये रॉबर है, उसे मारने आए हैं. और मारने आए हैं तो फिर अपने आप को बचाने के लिए अगर उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया, तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट ने इसको ये नहीं माना कि दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. कोर्ट ने बोला ये केस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, बिकॉज द अक्यूज्ड पर्सन वाज अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. ऑल राइट. ये 98 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, लेकिन ये मिलता जुलता है उससे, इसलिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ. ये फैक्ट एक्चुअली अक्सर आ जाता है एग्जाम में एज इट इज़, दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 99. एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt, if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under the color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law. All right. तो बेसिकली ये यही कह रहा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट करता है तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक नहीं है जब तक आपको एप्रीहेंशन, डेथ या ग्रीवियस हर्ट करना हो. ठीक है. इवन दो उसकी जो एक्ट है वो उसके कलर ऑफ ऑफिस के अंडर, अगर वो उसके कलर ऑफ ऑफिस के अंडर काम कर रही है, मतलब वो लेट अस सपोज इज अ पुलिस ऑफिसर, तो उसकी ऑफिशियल अथॉरिटी अरेस्ट करना, तो हो सकता है वो अथॉरिटी थोड़ी एक्सीड कर जाए, हैंड कफ्स लगा दे, घसीटते हुए ले आए, 3-4 थप्पड़ लगा दे. इवन दैट इन दैट सिचुएशन द पर्सन हैज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट हिम. ठीक है. इट इज़ ओनली व्हेन द एक्यूज्ड पर्सन थिंक्स दैट देयर इज़ एन एप्रीहेंशन ऑफ death or grievous hurt from that particular public servant. ठीक है. तो वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल हो जाता है. एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि पब्लिक सर्वेंट को गुड फेथ में काम करना है अपने कलर इन एक्टिंग अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस. सो गुड फेथ ज़रूर होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि व्हेन द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट इज़ टोटली अवेयर कि ही डजंट हैव सर्टेन राइट्स एंड इवन एंड इन दोज सर्कमस्टेंसेज इफ़ ही वांट्स टू एक्सरसाइज those rights which he doesn't have, then in that scenario the court will not say that the public servant concerned has been acting in good faith. तो ऐसे केस में हो सकता है कि उसको बेनिफिट ना मिले इस सेक्शन का, सेक्शन 99 का. कि मान लीजिए क्या होगा ना कि किसी फैक्ट में, आपको इस इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाता हूँ. एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि एक कस्टम्स ऑफिसर है, वो अक्यूज्ड को अरेस्ट करना चाहता है, अरेस्ट करता है. ठीक है. अब कस्टम ऑफिसर को फुली पता है कि उसके पास
कस्टडी में रखने का इसको कोई राइट नहीं है, इसको फॉरवर्ड करने का पुलिस कस्टडी पे। पर वो क्या करता है, उसको ज़बरदस्ती अपनी कस्टडी में रखता है, उसको खूब मारता है और कहता है पैसे दो तभी छोड़ूंगा। अक्यूज पर्सन पैसे देता है और फिर कस्टम अथॉरिटी कहती है कि मैं अभी भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें पुलिस की कस्टडी में फॉरवर्ड कर दूंगा। अक्यूज अपने आप को किसी तरीके से छुड़ाता है और कस्टम ऑफिसर को पीट के भाग जाता है। बाद में कस्टम ऑफिसर इसको सू कर देते हैं, ठीक है, प्रोसिक्यूट कर देते हैं, लेट अस सपोज अंडर सेक्शन 353 ऑफ द आईपीसी। अब जब प्रोसिक्यूशन उनका हो रहा है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन अ पब्लिक सर्वेंट और कॉजिंग हर्ट टू अ पब्लिक सर्वेंट, वो भी चार्ज लग जाएगा, 331 का भी चार्ज लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में अक्यूज ये बोलेगा कि मैंने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ऐसा किया, मुझे मार रहे थे, मुझे डर थे, मुझे मार देंगे। कस्टम अथॉरिटी सेक्शन 99 की बात बोलेगी कि देखिए सेक्शन 99 में लिखा है कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट का कोई एप्रीहेंशन इनके पास नहीं था, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो उसको कस्टडी में ही डालना चाह रहा था। और दूसरी बात ये, मैंने जो भी अपनी एक्ट्स किए हैं वो अपने ऑफिस की अथॉरिटी के अंडर किए हैं। कोर्ट ये बोलेगा कि आपने ऑफिस की अथॉरिटी के अंडर तो की, पर आपने एक्सीड कर गए। और दूसरी बात, आपकी अथॉरिटी में कोई गुड फेथ नहीं है, देयर वाज ज़ीरो गुड फेथ देयर। गुड फेथ क्या होता है, जो भी एक्ट की गई हैं ड्यू केयर और अटेंशन के साथ, यू आर फुली कॉन्शियस दैट यू डोंट हैव सर्टेन पावर्स। फैक्ट्स में मान लीजिए ये भी प्रूव हो गया कि इन्होंने पैसे भी लिए हैं, तो कोर्ट विल से कि नो, द अक्यूज्ड पर्सन हैज द राइट टू डू दैट। आपने ज़बरदस्ती बिना किसी चार्ज को उसको कस्टडी में रख लिया, कैसे रख लिया, कौन सी अथॉरिटी थी आपके पास, ना कोई रीज़न ना कोई कारण, और आपने उसको कस्टडी में रख लिया। देयर वॉज ज़ीरो कंप्लेंट्स अगेंस्ट हिम, देयर वॉज ज़ीरो ग्राउंड्स। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा गुड फेथ का क्लॉज जब भी पढ़े ना, तो ये ध्यान रखिएगा ये अनलिमिटेड क्लॉजेज नहीं होते हैं, ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज होते हैं। गुड फेथ मीन्स समथिंग विच इज़ डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। सो आई रिटरेट, सेक्शन 99 कहता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली क्लॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन by a public servant acting in good faith under the color of his office, though the act may not be strictly justifiable by law। तो अगर इस लास्ट लाइन से आपने गुड फेथ हटा दिया तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा अक्यूज्ड पर्सन को, ठीक है। अगर पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में एक्ट नहीं करता तो लॉ फिर उसको डिफेंड भी नहीं करता उसकी एक्सेसेस के लिए। सेकेंड प्रोविजन इज, पर एग्जाम में आप जनरली ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, ठीक है। एज अ डिफेंस प्रैक्टिकल सिनेरियोज में जो डिफेंस लॉयर्स होंगे वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक सर्वेंट की जो एक्ट्स थी वो गुड फेथ के अंदर नहीं थी, ठीक है। प्रैक्टिस वालों को ये करना है। जो एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं उनको ये बहुत सीधी सी बात बता दूँ, ये जो सेक्शन एज इट इज़ लिखा है आपको एज इट इज़ कोट करना है, आपको प्रिज्यूम करके चलना है कि पब्लिक सर्वेंट ने अपनी एक्ट गुड फेथ में की है। ये प्रिजम्पशन होता है जनरली लॉ का, द पब्लिक सर्वेंट हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ, सो दैट प्रिजम्पशन इज़ वेरी हार्ड टू रिबट। अब वो कंक्रीट एविडेंस से ही रिबटल होता है। नेक्स्ट इज देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट बट डज नॉट कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, दो दैट डायरेक्शन मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ। अब एक मैजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है कि वो प्राइवेट पर्सन को भी दे दे वारंट कि जाओ जाके अरेस्ट कर लो अगर वो आदमी तुम्हारी प्रॉपर्टी में आता है, या अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको जाके अरेस्ट कर लो। अब मैं वो वारंट लेके जाता हूँ, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट कर लेता हूँ, वो मुझे 2 मुक्के मार देता है, ठीक है। अब मुझे चोट लग जाती है, फिर मैं उसको प्रोसिक्यूट कर देता हूँ फॉर कॉजिंग हर्ट। अब मैं जब प्रोसिक्यूट करता हूँ तो वो कहता है कि मैंने तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया, ये प्राइवेट पर्सन है, ठीक है, तो ये मुझे अरेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि इन्होंने तो मुझे ऑफेंस करते हुए देखा नहीं कि ऐसा केस सेक्शन 43 ऑफ द CRPC में फॉल करे। तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं जो काम कर रहा था वो मैजिस्ट्रेट साहब के वारंट पे कर रहा था। ऑलराइट, द मैजिस्ट्रेट हैज़ गिवन मी द अथॉरिटी and I was acting under the direction of that public servant, then here the accused person does not have a right to exercise right of private defense against me, ठीक है, क्योंकि मेरी कोई भी एक्ट ऐसी नहीं थी which caused a reasonable apprehension of death or grievous hurt. Last and the most important one, ये सबसे important सेक्शन 99 का क्लॉज है। सेक्शन 99 को और दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है द लिमिटेशंस ऑन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो सेक्शन 99 का जो थर्ड क्लॉज है वो कहता है देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस वेयर देयर इज स्टैंड टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। तो ये लाइन याद कर लीजिएगा,
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब नहीं होता व्हेन देयर इज नो टाइम टू हैव, व्हेन देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज़। जब टाइम ना हो, डेंजर इतना इमिनेंट हो, यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट पब्लिक अथॉरिटीज़, तब जाके आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करिए। ये नहीं कि व्हेन यू हैव टाइम एंड यू आर स्टिल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऑलराइट, ये आपको जब मैं फैक्ट्स बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी प्रिंसिपल्स पे ध्यान दीजिए। द एक्सटेंट टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज्ड, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू इन्फ्लिक्टिंग मोर हार्म देन दैट इज नेसेसरी। तो ये वो वाला क्लास है कि फोर्स रीजनेबल होनी चाहिए, ओनली अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स कैन बी यूज्ड। द फोर्स यूज्ड इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुड कमेंसरेट विद द डेंजर। ठीक है। Explanation 1. A person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has a reason to believe that the person doing the act is a public servant. एक illustration देता हूँ, और actually पता है क्या, ये तब ज़रूर होता है जब पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट करने जाते हैं किसी दूसरे स्टेट में। I'll give you an example. जब दूसरे स्टेट में अरेस्ट करने जाते हैं ना पुलिस ऑफिसर किसी अक्यूज पर्सन को, तो अक्सर सिविल ड्रेस में जाते हैं। अब वहाँ पे मान लीजिए वो अक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और अक्यूज पर्सन को पता ही नहीं है पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में, और वो बताते भी नहीं। क्राइम ब्रांच वाले हमेशा ऐसे ही अरेस्ट करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि किसने अरेस्ट किया आपको। ठीक है, तो क्योंकि वो जनरली सिविल ड्रेस में भी होते हैं। तो सिविल ड्रेस में पुलिस ऑफिसर गए, अरेस्ट किया अक्यूज को। अक्यूज ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में उनको ग्रीवियसली इंजर कर दिया, क्योंकि उसको नहीं पता था ये लोग पुलिस ऑफिसर हैं। उसको तो लगा कि उसको कुछ लोग किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है वो उसको अबडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किडनैप नहीं कर सकते आप एक अडल्ट पर्सन को। अगर वो अबडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसको जान से मार दें। अक्यूज को मान लीजिए ऐसा लगा, ये उसके दिमाग में रीजनेबल एप्रीहेंशन आया, क्योंकि उसको कहीं से नहीं दिख रहा था ये लोग पुलिस ऑफिसर। उसने 2 को मुक्के मार दिए, एक का मुँह तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, तो ग्रीवियस हर्ट कमिट हो गई। ठीक है। अब एंड में मान लीजिए स्टेट पुलिस उसको वर्दी में जाके अरेस्ट कर लेती है, फिर ये भी चार्जेस उस पर लगा देती कि देखिए इन्होंने पब्लिक सर्वेंट को ग्रीवियसली इंजर किया उसकी ड्यूटी में। तो जब अक्यूज्ड पर्सन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेगा ना उस चार्ज के खिलाफ कि इनको ग्रीवियसली इंजर किया गया, तो वो ये हमेशा ये कह सकता है मुझे नहीं पता था ये लोग पुलिस ऑफिसर हैं, ये तो सिविल ड्रेस में थे, हाउ वुड आई नो कि ये पुलिस ऑफिसर थे। ना इन्होंने बताया, ना इन्होंने कोई वारंट दिखाया, ना इन्होंने अपना बैच दिखाया, हाउ वुड आई नो कि ये लोग पुलिस ऑफिसर हैं। मुझे तो लगा ये कोई ऑर्डिनरी गूंस हैं जो मुझे मारने आए। सो इन दैट सिचुएशन जो अक्यूज पर्सन है उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस केस में मिल जाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं। ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन 1 कह रही है, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट अनलेस ही नोज और हैज अ रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच अ पब्लिक सर्वेंट। सिमिलरली अभी जो मैंने आपको केस बताया था ना, इसमें पुलिस पार्टी घर में घुस गई थी अब्दुल के, और रात में उसने रेड मारी। अब उसको तो अब्दुल को तो पता ही नहीं था कि भाई रात में कौन उसके घर पे घुस आया। तो उसने क्या किया, देखा कि भाई कौन घुसा है, पुलिस पार्टी ने गोली चलाई, उसको लगा ऑर्डिनरी रॉबर है या डकैत आ गए मेरे घर पे, उसने भी पलट के गोली चलाई, एक को लग गई। जब इनका प्रोसिक्यूशन हुआ तो इन्होंने सीधे से बोल दिया मुझे थोड़ी ना पता था ये लोग पब्लिक सर्वेंट है, रात के 3 बजे घर पे रेड मार रहे हैं। तो ऐसे में डिफेंस मिल गया था उसको ड्यू टू मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। तो ये एक्सप्लेनेशन इसीलिए डाली गई है। ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन 2, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट is acting by such direction, or unless the person states the authority under which he acts, or if he has the authority in writing, unless he produces such authority if demanded. तो बेसिकली ये क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि अगर एक आदमी है उसको वारंट ऑफ अरेस्ट दिया गया है, प्राइवेट पर्सन को दिया गया है, तो जब मान लीजिए वो किसी के घर जाता है, कहता है कि आपको अरेस्ट करने का वारंट है, तो वो अथॉरिटी बता रहा है, फिर अक्यूज पर्सन कहता है कि मुझे वारंट दिखाओ, वो वारंट भी दिखा देता है। अब अगर अक्यूज पर्सन इस पर अटैक करता है इस आदमी पे, तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं जाएगा। पर लेटर सपोज वो वारंट लेता है, जेब में रखता है और सीधे अक्यूज के घर पे चला जाता है, ज़बरदस्ती उसको घर से खींचते हुए लाता है और अरेस्ट करने की कोशिश करता है। अक्यूज पलट के मार देता है उसको 3-4 घूंसे, ठीक है, दांत टूट जाता है। एंड में ये प्राइवेट पर्सन उसको प्रोसिक्यूट करते हैं ग्रीवियस हर्ट के लिए।
और फिर कहते हैं कि देखिए मुझे इसने मारा इतना ज़्यादा, मैं तो लॉ के डायरेक्शन में ही काम कर रहा था। तो ऐसे केस में कोर्ट सिंपली क्या बोलेगा, कोर्ट ये बोलेगा कि देखिए यहाँ पे मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हुआ है, क्योंकि अक्यूज्ड पर्सन को नहीं पता था कि आप पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, ना ही आपने अपना वारंट बताया, ना आपने ये दिखाया कि किस अथॉरिटी के अंडर आप उसे अरेस्ट कर रहे हैं। आप सीधे चले गए, उसको लगा कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हैं या कोई ऑर्डिनरी किड अबडक्टर हैं जो हो सकता है उसको मारने आया। तो ऐसी सिचुएशन में ना जो प्रोसिक्यूट कर रहा है वो जीत नहीं पाएगा। यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अक्यूज पर्सन को मिल जाएगा, बिकॉज ही डजेंट इवन नो अंडर विच अथॉरिटी दैट पर्सन इज एक्टिंग। ठीक है, तो प्राइवेट पर्सन जब भी वारंट एग्जीक्यूट करे उनको वारंट दिखाना होता है या अपनी अथॉरिटी स्टेट करनी होती है कि इस अथॉरिटी के अंडर ऐसा कर रहे हैं, वरना वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर लेगा। और अगर अक्यूज पर्सन को ये नहीं पता है कि मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट है, तो भी वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। इसीलिए पुलिस ऑफिसर जब सिविल ड्रेस में जाते हैं तो जनरली जो अक्यूज़ड अगर उनके खिलाफ थोड़ा वायलेंस कमिट करता है तो ऐसे में कोर्ट कहता है कि ये हो सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हो, अगर वो अक्यूज़ प्रूव कर लेता है तो। लेकिन अगर अक्यूज़ड को पता है कि उसको अरेस्ट करने, मान लीजिए वो नॉन गैंगस्टर है और उसको अरेस्ट करने पुलिस ऑफिसर ही आए हैं, भले ही सिविल ड्रेस में आए हैं, एंड अक्यूज्ड पर्सन नोज़ कि ये पुलिस ऑफिसर है, तो ऐसे केस में अगर वो वायलेंस कमिट करता है तो उसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑलराइट, अगर वो इंजर कर देता है पुलिस ऑफिसर को या मार देता है तो उसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये देखिए फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे चीज़ें बदलती हैं और कहीं पे डिफेंस मिल जाता है फैक्ट्स के हिसाब से, कहीं पे डिफेंस नहीं मिलता। तो रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीफ होना चाहिए और गुड फेथ होना चाहिए, ये सेक्शन 99 में मेन एसेंस है। ये इन वर्ड्स को आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं सेक्शन 100 पढ़ लेता हूँ, फिर आज के लिए बस इतना होगा। टुमारो विल स्टार्ट विद द इलस्ट्रेटिव केसेस जो आपको थोड़ा और बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, नाउ when the right of private defense of the body extends to causing death, the right of private defense of the body extends under the restriction mentioned in the last preceding section to the voluntary causing of death or any other harm to the assailant if the offense which occasions the exercise of that right be of any of the description mentioned be of any of the descriptions hereinafter enumerated, namely इसमें इस पैराग्राफ में पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अभी जो नेक्स्ट लाइन में आप असॉल्ट से जो शुरू करते हैं, फर्स्ट सच एन असॉल्ट, तो असॉल्ट की जो डेफिनेशन लॉ में दिया गया है ना, वो रीजनेबल एप्रीहेंशन से भी अराइज कर सकता है। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एक्चुअल इंजरी होनी ज़रूरी है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ना असॉल्ट, इसको मार्क कर लीजिए। ऑलराइट, असॉल्ट 351 ऑफ द आईपीसी में डिफाइंड है, जो बस इतना सा कहती है कि अगर कोई भी आदमी कोई ऐसा जेस्चर या प्रिपरेशन करता है जिससे दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो उसके खिलाफ क्रिमिनल फोर्स कमिट करने वाला है, तो ऐसे केस में उसको असॉल्ट कहा जाता है। तो जेस्चर या प्रिपरेशन क्रिमिनल फोर्स में अगर इस नेचर की है जो आदमी को लगे कि क्रिमिनल फोर्स होने वाली है, क्रिमिनल फोर्स हुई नहीं है, होने वाली है, तो दैट सिचुएशन में उसको असॉल्ट कहते हैं। और सेक्शन 100 क्या शुरू कर रहा है, किन वर्ड से शुरू कर रहा है? सच एन असॉल्ट, इंजरी होनी मतलब ज़रूरी नहीं है, क्रिमिनल फोर्स कमिट होना भी ज़रूरी नहीं है। मियर एप्रीहेंशन, दिस इज़ वाई कोर्ट्स कहते हैं मियर एप्रीहेंशन is enough to put the right of private defense in motion. Such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault. तो ये आप समझ गए कि अगर assault ऐसी है which may cause a reasonable apprehension that death will be caused, तो a person is liable for तब a person can exercise the right of private defense. All right. Secondly, such an assault as may reasonably cause apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault. देखिए सारे क्लॉजेज ऐसे ही शुरू होंगे, an assault, an assault, an assault. Thirdly, an assault with the intention of committing rape. Fourthly, an assault with the intention of gratifying unnatural lust. Unnatural lust कहाँ पे? 377 IPC. Fifthly, an assault with the intention of kidnapping or abducting. Sixthly, an assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities. ऐसी सिचुएशन में उसको कन्फाइन किया जाना चाहिए कि आदमी को लगे कि वो पब्लिक अथॉरिटीज़ को कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकता है। 6th क्लॉज है। 7thly,
act of throwing or administering acid or attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act. अब ये 2013 के अमेंडमेंट से आया, बस ऑनेस्टली स्पीकिंग 7th क्लॉज की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि इस 2nd क्लॉज में ऑलरेडी कवर्ड था. ठीक है, एक्सप्रेसली लेजिस्लेचर ने लिख दिया, बट इसको अलग से डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं. इट वाज ऑलरेडी इन द स्टैट्यूट बुक अंडर सेक्शन 100 सब सेक्शन 2nd क्लॉज में आ ही जाता है अपने आप. क्योंकि अगर आप एसिड अटैक करते हो या ऐसा प्रिटेंड करते हो, ऐसा असॉल्ट कमिट करते हो जिससे लगे कि एसिड अटैक होने वाला है, तो ग्रीवियस हर्ट का प्रिजम्पशन तो ऑटोमेटिकली अराइज कर जाएगा, है ना. तो उसके लिए अलग से वो डालने की ज़रूरत नहीं थी, 7th क्लॉज डालने की ज़रूरत नहीं थी. बट अब डाल दिया तो ठीक है, अब यहाँ पे 7 क्लॉज हो गए हैं. तो अगर प्रीलिम्स में आंसर आए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि कितने क्लॉज हैं सेक्शन 100 में, 7 क्लॉज हैं. पहले पुराने टाइम पे आंसर होता था 6, 2013 के बाद आंसर है 7. सो सेक्शन 100 हमने देख लिया. अब हम कल क्या करेंगे, प्राइमरली फैक्चुअल केस लॉ से डील करेंगे. ठीक है, प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, सेक्शन मैंने रीड कर दिया. अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में क्या है. बस एक चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है कि जब मैं फैक्ट्स बताऊंगा तो जो भी फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ ना, आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उन्हीं सिचुएशंस पे लगाना है. ठीक है, आई थिंक मुझे लगे हाँ 101 और 102 भी कर ही देना चाहिए, जैसे ऑफेंसेस right of private defense of the body to completely cover हो जाए. So I'll also cover that. Wait a second. Now section 101 says when right extends to causing any harm other than death, if the offense be not of any descriptions enumerated in the last preceding section, right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend under restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing of assailant any harm other than that. तो voluntary causing of death को छोड़ के आप कोई भी harm कर सकते हैं अगर आप right of private defense किसी ऐसे offense के खिलाफ एक्सरसाइज कर रहे हैं जो सेक्शन 100 में फॉल नहीं करता. तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ सिर्फ हर्ट में फॉल करती है या किसी भी ऐसे ऑफेंस में फॉल करती है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 100, सेक्शन 100 के अंदर नहीं आना चाहिए, तो डेथ को छोड़ के आप कोई भी इंजरी कॉज कर सकते हैं. ग्रीवियस हर्ट तक अपर लिमिट है, पर डेथ नहीं कॉज कर सकते वॉलंटरली. ठीक है, 102 इज इम्पॉर्टेंट. commencement and continuance of the right of private defense of the body. The right of private defense of the body commences as soon as the reasonable apprehension of danger to the body arises. ये first part है. As soon as the danger arises, the right of private defense arises. Secondly, second part है, and it continues as so long as the apprehension of danger to the body continues. तो तब तक चलता है जब तक डेंजर एग्जिस्ट कर रहा है. जो एक बार डेंजर सीज कर गया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी सीज कर जाएगा. तो आप इसको एक लाइन में क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्या है सेक्शन 102 का. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट्स एज सून एज द apprehension of any offense starts, and it ends the moment such apprehension of an offense ceases. Alright, the moment danger ceases, right of private defense ceases. The moment danger arises, the right of private defense arises. Alright, danger commit होने की ज़रूरत नहीं है, assault commit होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, apprehension actually manifest होने की ज़रूरत नहीं है. It is not necessary that the apprehension should come to a fruition. It is enough if a reasonable apprehension has arisen on the facts. Alright, I'll reiterate section 102. The right of private defense arises as soon as the reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit an offense, though the offense may not have been committed. So commission of the offense is not necessary. It is merely the apprehension or reasonable apprehension that should arise. And second, the right of private defense lasts only so long as the apprehension as the apprehension to the danger of body continues. जब तक आपके शरीर को खतरा है तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. जब शरीर को खतरा बंद हुआ तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेन विच इज एक्सरसाइज टू डिफेंड द बॉडी सीजेस. ठीक है,
इसका भी एक इलस्ट्रेशन ले लीजिए। मान लीजिए रात में घर पे रॉबर घुसा, आपने उसे पीट के भगा दिया, भाग गया वो, ठीक है। अब आपने उसकी शक्ल शायद पहचान ली, आपको पता ही है कौन है। अब वो भाग गया, वो आ नहीं रहा, तो आप उसको एक हफ्ते बाद ढूंढ लेते हैं, कहीं से ढूंढ निकालते हैं, आप फिर उसको पीटते हैं। अब यहाँ पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तभी ख़त्म हो गया था व्हेन ही लेफ्ट योर हाउस, ठीक है। अब वो भाग चुका था, अब वो आने का उसका इंटेंशन नहीं था। हाँ, वो अलग बात थी अगर एप्रीहेंशन ऐसा है फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज में कि वो हो सकता है रिटर्न करे, तो आप उसको पकड़ के कन्फाइन कर सकते हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इन सर्टेन सिचुएशंस अगर आपको ये भी डर है कि ही कैन इवन कमिट एन ऑफेंस एंड देयर इज़ अ डेंजर टू योर लाइफ, वो जान भी ले सकता है, तो आप अपने रीजनेबल एप्रीहेंशन में ऐड करते हुए उसकी जान भी ले सकते हैं, बिकॉज द सिचुएशंस विल देन फॉल अंडर सेक्शन 100। लेकिन इलस्ट्रेशन के सेक के लिए अगर मान लीजिए कि वो भाग गया और आप उसको एक हफ्ते बाद ढूंढ के निकालते हो और कोई एफआईआर कोई प्रोसीजर नहीं फाइल किया आपने, और उसके बाद आप उसे मारते हो, तो वहाँ पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ये आपने रिटेलिएशन और रिवेंज किया है। दैट इज़ नॉट अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तभी तक होता है जब तक डेंजर है आपको, टिल द टाइम देयर इज अ डेंजर टू योर बॉडी। ऑलराइट, तो रात को अगर कोई आपके घर में घुसा, आपको एक रीजनेबल एप्रीहेंशन हो सकता है कि हो सकता है मेरी जान ले ले। ऑलराइट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। ये कोई कट एंड राइट नहीं कि हर केस में रात में कोई घर पे घुसे तो आदमी यही सोच के बैठे है कि अब ये मेरी जान ले लेगा। नो, बट एक रीजनेबल एप्रीहेंशन जनरल सर्कमस्टेंसेस में अराइज हो सकता है। तो अगर वो अराइज होता है तो वो तभी तक के लिए है जब तक वो डेंजर एग्जिस्ट करता है। एक टाइम पे वो डेंजर सीज कर गया, वो आदमी मान लीजिए भाग गया किसी भी तरीके से, और आपने पुलिस अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया या स्टेट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया, तो इन दैट सिचुएशन में आपका काम ख़त्म हो गया। अब आप उसको ढूंढ के जाके अगर मारते हैं किसी भी तरीके से, मान लीजिए एक हफ्ते बाद आपने उसको ढूंढा, उसको पीटा, ठीक है, इन दैट केस दैट इज़ नॉट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, दैट इज़ एक्चुअली रिटेलिएशन, और आप फिर अपनी इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए लायबल होंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। कल हम लोग फैक्चुअल सिनेरियो से डील करेंगे, फैक्ट्स बताऊंगा आपको कुछ केसेस का। बस आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना है, आपको जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी प्रिंसिपल मैंने अभी आपको बताया, आपको उन फैक्ट्स पे अप्लाई करने हैं और फिर यू विल कम टू अ कंक्लूजन, ठीक है। क्योंकि मैं कल आपको एक लाइन में ये सारी चीज़ें बताऊंगा, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी जो सेक्शन बताया और जो प्रिंसिपल बताया, ये इनको आपको प्रॉपर सेंस में समझना है, ठीक है। तो अभी ये प्रिंसिपल और सेक्शन जो मैंने बताया, अभी ये एब्जॉर्ब कर लीजिए आज के लिए। टुमारो विल डील विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, विल कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। फैक्चुअल केसेस देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।